جب وہ یہاں پر گرا کسی نے کہا کہ میوزک ایونٹ ہو رہا تھا اور وہ چلتے رہے, کسی نے پرواہ نہیں کی. ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم نے آج تک اس طرح کے واقعے کے مطابق ادارے میں SOP سیٹ اپ نہیں کیے. جب وہ بچہ چھلانگ لگا رہا ہے, کیا وہ کسی سے کچھ کہہ رہا ہے یا اس نے بس آیا اور چھلانگ لگا دیا؟ ساری باتیں ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ ایک سٹوری چل رہی ہے, ایکچوئل ریکارڈ موجود ہے. ہمارا پلان ہے کہ ہم امیجیٹلی سینٹر سیٹ اپ کریں اور اس بچے کے نام پہ کوئی انیشیٹو شروع کریں. بہت سارے لوگوں سے غلطی ہوئی تو یہ ہم نے یونیورسٹی میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک بچہ ہے, اس نے 4تھے فلور سے چھلانگ لگائی اور خودکشی کر لی. تو ایک لمبی الزامات کی لسٹ ہے. بچے کے اوپر پریشر تھا فیسوں کا, بچے کی اٹینڈنس شارٹ تھی, ٹیچر کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا, اور بچے نے ایک ویڈیو تو میں نے یہ بھی دیکھی جس میں کلیم کیا گیا کہ بچے نے کوئی 50 مرتبہ معافی مانگی ٹیچر سے. تو آپ ان سارے الزامات کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا جواب ہے آپ کا؟ بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ٹریجک ایونٹ ہے. ایک کیمپس کے بچے جس کا فیوچر, جس کا کیریئر بنانے کے لیے وہ یہاں آیا اور اس طرح اس نے سوئسائڈ کی. تو یہ تو ان اٹ سیلف ایک ٹریجڈی ہے, اور یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں, یہ ایڈمنسٹریشن ہم سب کے لیے. اٹس اے ویری سوری اسٹیٹ. اب یہ ہوا کیسے اور یہ اس واقعے کے پیچھے کیا کیا معاملات ہیں, اس کے لیے امیجیٹلی ہم نے ایک انویسٹیگیشن کمیٹی سیٹ اپ کی جس میں اسٹوڈنٹس کو بھی شامل کیا, اور ہم ہر دن نئی سے نئی چیزیں نکل گئی. پہلی تو بات, بچے کی فیس کا کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں. فیس جمع تھی, کوئی اٹینڈنس بھی اس کی شارٹ نہیں تھی. ایک ٹیچر کے ساتھ ایک ایونٹ ہے کہ ٹیچر نے اس کے ساتھ تھوڑا ہارش بات کی جس پہ وہ ہرٹ ہوا. آبویسلی سیم ڈے نہیں, پہلے اس سے بیفور, جس دن یعنی سوسائڈ ہوئی ہے اس دن کچھ نہیں ہوا. نیوز دن تو صبح کا ایک واقعہ ہے, وہ سارا انویسٹیگیشن میں آ رہا ہے اسی ٹیچر کے ساتھ. تو اب ہم ہماری کوشش ہے کہ پراپر انویسٹیگیشن ہو, اسٹوڈنٹس اس کا حصہ ہیں, انوالوڈ ہیں. وہ بچہ جس ہاسٹل میں جس کمرے میں تھا اس کے ساتھ روم میں اس کلاس کے CR GR یہ سب لوگ اس وقت پینل کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے مختلف اینگلز کے, یہ کیا ہوا, کیسے ہوئی ٹرائل. کیونکہ کوئی اپیرنٹ ایسی وجہ نہیں کہ بچے فیس نہیں جمع کرائی تو اس کا فیس جمع ہے, اس کے خلاف کوئی اور ایشو نہیں ہے, کسی سبجیکٹ میں اٹینڈنس شارٹ نہیں, کوئی اٹینڈنس کا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر بھی ایک بچے نے یہ اسٹیپ کیوں لیا ہے, یہاں تک پہنچا. ایک دفعہ ایک ٹیچر نے کوئی بات کی جس پہ بچے نے ہرٹ فیل کیا بکال اسٹوڈنٹس کے, تو اس وجہ سے وہ یہ اسٹیپ لے لی. وہ ویسے کیا بات ہے اگر آپ بتائیں تو؟ کلاس میں لیٹ آیا ہے, وائٹ کوٹ نہیں ہے, اس کی اٹینڈنس ٹیچر نے کہا کہ نہیں لگ سکتی, تم لیٹ آئے ہو, وائٹ کوٹ پہن کر آؤ. تو وہ وائٹ کوٹ لینے گیا, اتنی دیر میں کلاس اینڈ ہو رہی ہے, اس نے کہا بھائی اب تو کلاس ہی ختم ہو گئی. تو یہ ایک ایشو ہے جو شاید ہر کلاس میں ڈیلی 2-2 3-3 4-4 اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہو. ہم بھی پڑھیں, آپ بھی پڑھیں, ریگولر یونیورسٹی. تو جہاں ایک فیلنگ ہے کہ اس دن یا فیس کے کسی معاملے سے یا اٹینڈنس کے معاملے سے وہ بچہ ڈسٹرب ہوا, ایسا معاملہ نہیں. بچہ گڈ اسٹوڈنٹ ہے, اچھا 3 GPA سے اوپر ہے اس کا, جی اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ ہے. لیکن جو تھوڑی سی چیزیں ہیں کہ جیسے 5ویں سیمسٹر میں اور اس کا کوئی بھی دوست اس طرح نہیں ہے. یہ فارمیسی کا اسٹوڈنٹ ہے, فارمیسی کا اسٹوڈنٹ, 5واں سیمسٹر ہے, باقی کلیئر ہے اس کا 3 CGPA, 3 GPA پلس ہے, کوئی ایشو نہیں. اس کے بارے میں کوئی انکوائری نہیں, اس کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ہے, اس سے ٹیچر ناراض نہیں ہے, اس سے کوئی ایسی بات نہیں. ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوا, اچھا اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. آج اس کے میٹرک اور FSC میں جو کلاس فیلوز تھے ان سے ملاقات, انہوں نے بتایا کہ جی ہم اس کو ایک بیبا بچہ کہتے تھے. تو ایک پیچھے سے ایک بچہ چلتا آ رہا ہے جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, اس کے ماں باپ نے اپنی طرف سے بہترین پالا ہے, ادارے میں آیا ہے, کوئی اس کے خلاف کوئی
शिकायत नहीं है, ना स्टूडेंट्स को ना टीचर्स को, फीस का प्रॉब्लम नहीं है, फीस जमा है, कोई फाइन नहीं है। एंड ही डिसाइड्स वन डे अर्ली मॉर्निंग टू एंड हिज लाइफ। किसी ने धक्का नहीं दिया। वीडियो में ये हो सकता है कि भाई अगर बच्चे का प्रॉब्लम नहीं तो क्या, तो और हर दिन इंक्वायरी चलती हुई आई थिंक, और मकसद स्टूडेंट्स को एंगेज करने का भी ये था कि स्टूडेंट्स भी देखें कि ये चीज़ें क्या हैं, और वो खुद, क्योंकि उसके बारे में हमारे पास फीडबैक है स्टूडेंट से अब तक। अच्छा, जिस हॉस्टल में, जिस कमरे में जिस बच्चे के साथ वो रहता है, उसका है कि ये बहुत लोनली है, ही हैज़ नो फ्रेंड्स, और वो अपनी एक दुनिया में है। उसका कोई आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है उस तरह। ठीक है। तो मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि वो लोनलीनेस जिसमें वो 5वें सेमेस्टर में आया है एज ए यूनिवर्सिटी, है हमारा एक फेलियर है कि हम उस बच्चे को एंगेज नहीं कर सकें, जिसका आगे ब्राइट फ्यूचर था। 5 सेमेस्टर वो कर चुका है, उसने ग्रेजुएट करना है, डिग्री रिकग्नाइज्ड, कोई इशू नहीं, उसने आगे निकल के इंशाल्लाह अपना एक फ्यूचर बनाना है। दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। उस तरह का बच्चा अगर ये कर सकता है, तो जो बच्चे एक्चुअली स्ट्रेस में हैं, जिनके एक्चुअली ये मामला हैं फीस के, अटेंडेंस के, फाइनेंशियल इश्यूज हैं सोसाइटीज़ में, सोसाइटी में इस वक्त वैसे ही डिप्रेशन है इस यूथ, वो सारे लेके एक बच्चा आता है, तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करें कि वो इस तरह का कोई काम कर ले। अगर एक ब्राइट स्टूडेंट इस तरह कर सकता है, एक तो उनका क्या, कोई क्राइसिस नजर नहीं आ रहा जाहिर है। अभी तक वैसे किसी ऐसी हम वजह पर नहीं पहुंचे, जो इंक्वायरी कमेटी है, बाकी लोग हैं, कि हुआ क्या है। रातों को बैठ के हॉरर फिल्म्स देखता है, या अपने ऑन हिज ओन गेम्स खेलता रहता है, जिस तरह की भी नहीं, तो 4 5 6 अच्छे दोस्त भी तो होते हैं ना आपके कमरे में, यूनिवर्सिटी में, वो हैं उस तरह के दोस्त हैं, लेकिन दोस्त नहीं हैं, मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, और जो उसके बारे में फिक्र कर रहे हैं। वो बच्चे कह रहे हैं कि यार ये वी शुड टेल समबडी कि ये उसकी अपनी दुनिया में मगन है। इतने इस लेवल की आइसोलेशन है, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि लगता है कि स्ट्रेस है जिसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आ रहा है। अभी चूंकि इंक्वायरी मुकम्मल नहीं है, डजंट लुक नाइस, ठीक है, कि हम जाके आप अभी नतीजे पे नहीं पहुंचे, बच्चे के बारे में कोई ऐसी बात करें, उसकी डेथ होगी, इन इटसेल्फ इट्स अ ट्रेजेडी उसके लिए, उसके फैमिली के लिए, तो कोई बात एक बात मैं करना चाह रहा हूँ कि जब वो यहाँ पर गिरा, और फिर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जिसका आपको जवाब देना चाहिए, कि यहाँ पर फिर किसी ने कहा कि कोई म्यूज़िक इवेंट हो रहा था, या कोई ऐसे इवेंट्स बड़े हो रहे थे, और वो चलते रहे, किसी ने परवाह नहीं की, किसी ने उस बच्चे की तरफ नहीं देखा, या क्या हुआ क्या? जब ये वाक़या हो गया तो पूरे कैंपस पे बहुत हर दिन इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सब। ये अपनी नौयत का पहला वाक़या था। उस बच्चे को रश किया, कैंपस के ऊपर बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ ले गए उसको, और सारी टीम डॉक्टर्स की सब उसके ऊपर मुतवज्जो थी कि इसको जान बचाई जाए, और एक उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ये रिकवर करेगा। ये वाक़या सुबह पेश आता है? सुबह पेश आया। उसके दौरान एक इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल हो रहा था बच्चों का, जिसमें म्यूजिक नहीं था। अच्छा, लेकिन फूड फेस्टिवल था। ठीक है, हल्ला गुल्ला होगा, रौनक होगी। आइडियली अगर आप इन चीज़ों को आप हाइंडसाइट में पीछे जाके देखें, तो ऐसी चीज़ें जैसे उस जगह ये वाक़या हुआ है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं कि अगर रोक देनी चाहिए थी, यानी फ़ौरन रोका जाए। एक बच्चे की लाइफ जो है वो अब इस वक्त एट स्टेक है, चाहे उसने खुद किया, किसी ने उसको धक्का नहीं दिया, जो भी हुआ, जो भी वाक़या। तो हमने रियलाइज़ किया कि हमने आज तक इस तरह के वाक़े के मुताबिक इदारे में SOP सेटअप नहीं किए कि अगर खुदा न खास्ता वाक़या हो जाए तो करना हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। कितने बच्चे वैसे कैंपस में? 32,000 स्टूडेंट होता है कैंपस पे, और शाम को स्टूडेंट्स ने प्राइवेटली कोई म्यूजिकल इवेंट रखा। अभी बच्चा जिंदा था और हॉस्पिटल में था, एंड देयर वाज होप। मैं समझता हूँ इदारे को इमीडिएटली ईमेल कर सब बच्चों को देनी चाहिए थी पूरे वाक़े के बारे में, रादर देन के लोग कहानियाँ और मुख्तलिफ स्टोरीज। नहीं, कुछ लोगों ने कहा था कि हमें सोशल मीडिया से पता चला कि कैंपस में ये वाक़या हुआ, तो इमीडिएटली एक ईमेल जानी चाहिए। और अब हम पिछले 2 दिन से सिर्फ वो SOPs लिख रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा वाक़या हुआ, दुनिया में कैंपसेस पे होते हैं मुख्तलिफ, तो इदारे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं।
मेंटल वेलनेस का एक इशू आइडेंटिफाई हुआ. मेंटल वेलनेस के साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है. Immediately we are setting up a center for mental wellness in the university. We are hiring psychologists, psychiatrists, counselors to support students. 25 years हुए यूनिवर्सिटी को बने, वैसे इससे पहले कभी कोई चीज़ नहीं. ये पहला वाक़या है. और जिस बच्चे के साथ है हमें उसकी कोई वो समझ नहीं आ रहा है इसके सिवा कि कोई डिप्रेशन या लोनलीनेस इस लेवल की थी कि ही डिसाइडेड टू एंड हिज लाइफ. और उसने किसी के साथ ये शेयरिंग ही नहीं की हुई कि मेरे साथ चल क्या रहा है. जो बच्चे एक दोस्त के इर्द-गिर्द हैं जो फिक्र कर रहे हैं और जो जिनको नज़र आ रहा है वो कोशिश भी कर रहे हैं, उनके पास उसके पेरेंट्स का नंबर नहीं है या जो भी वजह है, हमें ऐसा सेटअप बनाने की ज़रूरत है जो इमीडिएटली हम इंशाल्लाह सेटअप करें कि बच्चे अगर किसी और फेलो स्टूडेंट के बारे में ऐसी आइसोलेशन या डिप्रेशन फील करें, इमीडिएटली इन्फॉर्म करें. अच्छा. इमीडिएटली बताएं ताकि हम कोई उसको सपोर्ट दे सकें. कोई इमीडिएटली उसको काउंसलिंग कोई साइकियाट्रिक सपोर्ट दी जा सके. तो ये जो इन इटसेल्फ एक ट्रॉमा है जिससे स्टूडेंट भी गुजर रहे हैं, जिससे हम भी गुजर रहे हैं, कि वो क्या रीजंस हैं कि बच्चा जिसके ये जो लोग कह रहे हैं कि फीस का मामला, अटेंडेंस का, ये सारी बातें ठीक है, सोशल मीडिया पे एक स्टोरी चल रही है, एक्चुअल रिकॉर्ड मौजूद है. ऐसा कुछ है ही नहीं. वजह है कि वो बच्चा इस लेवल तक गया है और अगर वो जा सकता है तो कोई भी जा सकता है. तो जिसकी एक्चुअल में अटेंडेंस शॉर्ट है, जिसकी वाकई फीस जमा नहीं हुई, जिसको फाइन लग गया है, जिसका कोई और प्रॉब्लम है, जिसके फैमिली में इश्यूज हैं, जिसके पेरेंट्स का कोई क्राइसिस उसको इफेक्ट कर रहा है, तो उस सूरत में फिर हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इन केस दैट्स. तो वो जो टीचर हैं जिन्होंने अभी तो चूंकि बातें इस तरह से सामने नहीं आई, लेकिन अभी चूंकि इल्ज़ाम है कि उन्होंने कोई रूड बिहेवियर रखा हुआ था या वो बच्चा उसके साथ, उनके साथ क्या हुआ? हमने टीचर जो है उनको ऑब्वियसली इस क्लास से सस्पेंड किया और उन्हें भी कहा कि भी इंक्वायरी का हिस्सा बने. टीचर हमारे दौर में तो टीचर बच्चे को डांटना क्या, हमें मारते भी थे तो हम उनको अपना पेरेंट समझ के. आज क्या बात हुई कि एक टीचर ने गुस्सा किया या जो कि अभी प्रूव नहीं हुआ, अभी तो सारी इंक्वायरी होगी इंशाल्लाह तो पता लगेगा कि बच्चा उस वाक़े के बाद. सो मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा डीप इशू है जिसको हम एक दिन से अटैच करें, क्योंकि पूरे 5 सेमेस्टर का एक ट्रेंड है. वो देख के अंदाज़ा होता है कि इस बच्चे को किसी टाइम पे राइट सपोर्ट, एडवाइस, मेंटोरिंग चाहिए थी. जिस चीज़ में हमने उसको आइडेंटिफाई करने में हमारा मैकेनिज़्म नहीं था और उसको वो सपोर्ट देने में हमारी साइड से कमज़ोरी है, जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत है. जो आपके पास तो यहाँ पर हर जगह पे वीडियोस होती हैं, सिस्टम है आपका, तो जब वो बच्चा छलांग लगा रहा है क्या तब क्या हालात हैं? क्या वो किसी से कुछ कह रहा है या उसने बस आया और छलांग लगा दी? बात कर रहा है किसी से, नज़र नहीं आ रहा किससे कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है और वो यानी उसके पास कोई मौजूद नहीं है. नहीं, मौजूद नहीं. और उसी हालत में उसने छलांग लगाई. तो यानी इससे पहले कोई ना कोई सिचुएशन उस पर आई होगी जी जी, जो लोगों ने ऑब्जर्व की होगी, लेकिन आप ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटी के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जहाँ पर वो आते और आके बता देते कि इसकी हालत ठीक नहीं है. हमें अब शायद इमीडिएटली सिस्टम बनाना है कि हमने ये नहीं सोचा कि एक यंग बच्चा जो सीमिंगली जिसका कोई इशू नहीं है उसको वो इस लेवल तक जा सकता है. और यूनिवर्सिटी के पास मैकेनिज़्म होना चाहिए उसको सपोर्ट करने का, उसको गाइडेंस का, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट का, साइकियाट्रिक सपोर्ट का, कि उसका डिप्रेशन जो है उसको हम किसी हद तक मैनेज करें, प्रेशियस लाइफ जो है वो ज़ाया ना होता. मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं जहाँ से हम अंदर एंटर हुए, यहाँ पर हज़ारों बच्चे जमा हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं. वो क्यों जमा थे, क्या बात हुई? बच्चे ऑब्वियसली जमा थे बिकॉज दे वर हर्ट. एहतजाज कर रहे थे. जी, एहतजाज का आई मीन ठीक जो वो कर रहे थे मैं समझता हूँ कि बनता था, बिकॉज दे वर डिस्टर्ब्ड एट अ यंग स्टूडेंट टेकिंग हिज लाइफ लाइक दिस. और उनके लिए जहाँ पेनफुल था, मेरे लिए भी, हमारे लिए बहुत पेनफुल था. कोई नहीं चाहता कि एक यंग लाइफ जो यहाँ आई है कैरियर बनाने, फ्यूचर बनाने, इस तरह ज़ाया हो. लेकिन क्या मैं भी ये भी सोचता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ का अपना एनवायरनमेंट
جو ہے جہاں پہ یوتھفلنس ہے, جہاں بچے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک اپرچونیٹیز کے بارے میں, فیوچر کے بارے میں ایکسپیکٹیشنز ہیں, ایکسائٹمنٹ ہے آگے زندگی میں. وہاں سوسائٹی کا اندر جو کرائسس ہے, اکنامک ایشوز ہیں, جو ڈپریشن وہاں سے آ رہا ہے, وہ ایک حد تک ایک یونیورسٹی, کوئی بھی یونیورسٹی آف لاہور ہو یا پنجاب یونیورسٹی ہو یا باقی پرائیویٹ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہوں, وہ کس حد تک اس کرائسس کے ایفیکٹس کو مینیج کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے, اس کو سپورٹ دینی ہے, ہم نے سوسائٹی سے بہتر پرفارم کرنا ہے. اگر سوسائٹی میں کوئی سپورٹ نہیں ہے اس کے لیے, تو کیمپس کے اوپر تو ایسی سپورٹ ہونی ضروری ہے. اور مینٹورنگ کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت اگریسولی کام کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایلڈر ہونا چاہیے ہر بچے کے پاس, جس کے پاس وہ جا سکے, بات کر سکے اور اپنا جو بھی غم ہے, جو بھی ایشو ہے, اس کو ڈسکس کرے, وہاں سے گائیڈنس ملے. تو آپ اس بچے کے پاس آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے کوئی گیا جب وہاں جی, پیچھے علاقے میں وہ اپنے گیا؟ جی, اس ہمارے کے والدین یونیورسٹی سے کا ڈیلیگیشن پہنچا. جنازہ تو فوگ کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے, 2-3 گھنٹے لیٹ پہنچے. ڈپٹی چیئرمین ہمارے ڈین سب گئے, اور اس کمنگ ویک ہم پھر جائیں گے, کیونکہ اس کی فیملی جنہیں سب سے زیادہ اس وقت obviously درد ہے, تکلیف ہے, اس کی فیملی ہے. we'll go to them again. ہمارا پلان ہے کہ ہم ویلنس کا امیجیٹلی سینٹر سیٹ اپ کریں اور اس بچے کے نام پہ کوئی انیشیٹو شروع کریں اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ کا, تاکہ ہم یہ جو ٹریجڈی ہے جس میں آبویسلی جو اس کے ساتھ اس کے ارد گرد اسٹوڈنٹس تھے, جو ٹیچرس تھے, بہت سارے لوگوں سے غلطی ہوئی تو یہ ہم یہاں تک پہنچے, یہ ریپیٹ نہ ہو.